Good evening, students. Myself, Kritika. I am lecturer from EC department at Meherchand Polytechnic College, Jalandhar. Before starting our lecture, I would like to give you some of the instructions to overcome this COVID-19. That is, wear mask, use sanitizer or wash your hands, and maintain social distance. These precautions are mandatory for everyone to follow, and I hope you already doing this. Well, now we will start with our chapter, and today's subject is digital communication system, and the chapter of today's subject is digital modulation. First of all, we will like to know about some of the parameters, that is digital modulation. Now, what is digital modulation? When we transmit our digitally modulated analog signal between one to other point in a communication system is called as digital modulation. That means our information signal could be analog or digital, but our carrier signal will always be an analog signal. So we will change the characteristics of analog signal in comparison to or in accordance with our digital signal. So now you read this definition. Digital modulation is transmittal of digitally modulated analog signal between two or more points in a communication system. We modulate our analog signal but digitally. In analog modulation, we were modulated at analog signal, analog by analog technology, but here we are modulating our analog signal with digital technology or digitally. And the channel could be wireless or wired. So there are many more advantages of using this digital modulation instead of that analog modulation. That is ease of processing, ease of multiplexing, noise immunity, and there are many more applications also like low speed voice band data communication modems, high speed data transmission systems, digital microwave and satellite communication system, and personal communication system telephones. So digital modulations are done in these types of applications. As we can see, in all these type of communication we are talking about data transmissions. That means in the form of 0 and 1 data is going through. That's why we are using digital modulation, that is also in the form of 0 and 1. Our information signal is in digital form, that may be discrete or binary. That's why we are using here, because these all are also related with data communication systems. Now, why are we using this digital modulation system? The modulation of digital signal with analog carrier. I already told you that our carrier signal will always be analog, whether it is analog modulation or digital modulation. But our information signal will be digital in this case and analog in other case. So the modulation of digital signal with analog carrier allows an improvement in signal to noise ratio as compared to analog modulation scheme. So why are we using this digital modulation? Just to improve our signal to noise ratio, so that our signal could be strong as compared to noise. As I have told you about the advantage here, noise immunity. That means noise is less in this case. So this is an important criteria which we need to know, that is high spectral efficiency. Here you can see in simple hardware what we were doing. We were just sending our signal, but there were more bandwidth required. And here the system is somehow complex, but the spectrum is very less. So high spectrum efficiency, if we are using less spectrum, that means efficiency of the spectrum is high and we are saving our spectrum. High power efficiency,
If we are using our communication for multipath, it is very robust. That means our signal loss will be less. Low cost and ease of implementation. Low carrier to core channel interference. That means noise signal will be less, interference will be less, and low out of band radiations. Constant envelope, that means constant signal. Bandwidth efficiency, as it will be having an ability to accommodate data within limited bandwidth. So by using only limited bandwidth, we can accommodate large number of data. So large number of data is going through the channel instead if we are having limited bandwidth. Trade-off between data rate and pulse width. Power efficiency, that means to preserve the fidelity of the digital message at low power levels and to increase noise immunity. So इस तरह से हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करते हैं. ये हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन सिग्नल है, दैट इज VT, और यहाँ पे V sin 2πft plus theta. This is the form how we represent our digital modulation signal. अब इसको ज़रा ध्यान से समझना है कि हम डिजिटल मॉड्यूलेशन में करने क्या वाले हैं. ये तो हमें क्लियर है कि डिजिटल मॉड्यूलेशन में हम एक कैरियर सिग्नल यूज़ कर रहे हैं जो एनालॉग फॉर्म में, और उसको हम इन अकॉर्डेंस विद आर डिजिटल सिग्नल चेंज कर रहे हैं, जिसको हम डिजिटल मॉड्यूलेशन बोल रहे हैं. अब जैसे हमने पढ़ा था कि एनालॉग मॉड्यूलेशन में हमारे पास AM, FM, PM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है. इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 3 और 4 टाइप्स हैं, ASK, FSK एंड PSK. These are the main 3 types. ASK is amplitude shift key, FSK is frequency shift key and PSK is phase shift key. So हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. V क्या है? हमारा एम्पलीट्यूड. साइन है हमारी वेव शेप जिसका फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम फेज चेंज करेंगे. अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इफ द एम्पलीट्यूड दैट इज V ऑफ द कैरियर इज वेरिड प्रोपोर्शनल टू द इंफॉर्मेशन सिग्नल. अगर हम कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे इन अकॉर्डेंस विद इंफॉर्मेशन सिग्नल, जो यहाँ पे डिजिटल मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, तो उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड शिफ्ट की. तो यहाँ पे हम कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर डिजिटल सिग्नल, इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड शिफ्ट की. If the frequency, that is EF parameter, if the frequency of the carrier is varied proportional to information signal, a digital modulated signal is called as frequency shift. अगर हम ये F पैरामीटर यानी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं अपने कैरियर सिग्नल की इन अकॉर्डेंस विद द इंफॉर्मेशन सिग्नल, जो इस केस में डिजिटल सिग्नल है, तो वो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट. Similarly, if we change phase of the carrier signal in proportional to information signal, that would be called as phase shift. और अगर हम both एम्पलीट्यूड भी चेंज कर रहे हैं और फेज भी चेंज कर रहे हैं कैरियर सिग्नल का, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दैट इज QAM. ठीक है. अब हम देखते हैं काम कैसे करता है. पहले हमारे पास एनालॉग मैसेज होता है, उसको हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किससे कर रहे हैं? मॉडेम से. ठीक है. तो एनालॉग मैसेज जो है उसको हम डिजिटल कम्युनिकेशन में चेंज कर रहे हैं या डिजिटल कोड में चेंज कर रहे हैं 1010 के फॉर्म में. फिर वो 1010 जो हमारा बाइनरी फॉर्म है उसको हम डिजिटल मैसेज में कन्वर्ट करते हैं, यानी उसके लेवल्स में उसको कन्वर्ट करते हैं. देन हम उसको मॉड्यूलेट करते हैं. अब जब मॉड्यूलेट करना है तो एनालॉग कैरियर है हमारे पास, जिसको साइन वेव कैरियर भी बोल रहे हैं, जो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दिस ये कैरियर सिग्नल है. सो अब इसको अगर हम इन सब पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो उसको हम उसके अकॉर्डिंग नाम दे देते हैं. जैसे अगर हम 1 पे सिग्नल है, 0 पे नहीं है या लो है, अगेन 1 पे है, 0 पे लो है या नहीं है, तो ये हो जाता है हमारा एम्पलीट्यूड शिफ्ट. FSK में क्या हो रहा है? अगर 1 पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 0 पे फ्रीक्वेंसी कम है, 1 पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और 0 पे फ्रीक्वेंसी कम है, तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की. अब फेज शिफ्ट की में क्या हो रहा है? ये देखो एक ही फेज आ रहा है, यहाँ पे आके फेज चेंज हो गया.
अगेन यहाँ पे आके आप ध्यान से देखो, तो ये जो सिग्नल देखो यहाँ पे आके फेज चेंज हुआ, अगेन यहाँ पे आके फेज चेंज हुआ। तो ये फेज शिफ्ट की में 1 के बाद 0 आता है तो फेज चेंज करता है, 0 के बाद 1 आता है तो फेज चेंज करता है। QAM में इस तरह से होता है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम होता है 0 वाली टाइप। हम एग्जांपल लेते हैं, उससे पहले हम ब्लॉक डायग्राम करेंगे डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम का। ये हमारा, आप अगर बुक देखोगे तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है ASK FSK क्या है, PSK क्या है, डिजिटल मॉड्यूलेशन क्या है, उसके इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, हमारे पास एक इनपुट डाटा है और हमने एक क्लॉक सिग्नल दिया। वो हमने किस ब्लॉक को दिया है, प्रीकोडर। प्रीकोडर का काम क्या है, ये लेवल कन्वर्जन करता है और सिग्नल को एनकोड करता है बिट्स में। जो भी मेरा इनकमिंग डाटा आ रहा है उसको मैंने ग्रुप ऑफ बिट्स में कन्वर्ट कर देना है ताकि वो एनालॉग कैरियर के साथ मॉड्यूलेट हो सके। Recorder perform level conversion and encodes incoming data into group of bits. Incoming data को किसमें कर दिया, group of bits में, that modulate an analog carrier. तो प्रीकोडर ने क्या किया, लेवल कन्वर्जन कर दी अगर कहीं पे लेवल कन्वर्जन की ज़रूरत है। दूसरा इसने क्या किया, दूसरा इसने हमारा जो भी इनपुट डाटा है, मे बी यहाँ पे एनालॉग हो और यहाँ पे डिजिटल हो, उसको ग्रुप ऑफ बिट्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्लॉक सिग्नल देख के यहाँ पे इनपुट डाटा है तो उसको ग्रुप ऑफ बिट्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे दे दिया। अब क्या है मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर क्या करेगा, मॉड्यूलेटेड कैरियर जो हमारा यहाँ पे आया उसको फिल्टर्ड करेगा, एम्पलीफाइड करेगा और आगे ट्रांसमिट कर देगा। ये हमारा मॉड्यूलेटर है। मॉड्यूलेटर के पास कौन से दो सिग्नल होने चाहिए, एक तो कैरियर सिग्नल जो एनालॉग है यहाँ पे, एनालॉग कैरियर सिग्नल, दूसरा जो यहाँ पे डिजिटल बिट्स आएंगे, तो इसीलिए वो डिजिटल मॉड्यूलेशन करेगा। यहाँ इंफॉर्मेशन सोर्स है डिजिटल बिट्स, ग्रुप ऑफ बिट्स, यहाँ से एनालॉग कैरियर आया, मॉड्यूलेटर ने उसको मॉड्यूलेट करके आगे सेंड कर दिया। यहाँ लगा हुआ है बैंड पास फिल्टर एंड पावर एम्पलीफायर। तो बैंड पास फिल्टर ने क्या किया, जो हमारा सिग्नल आया उसमें बैंड पास फिल्टर लगा के पर्टिकुलर बैंड को पास कर दिया और उसकी पावर को भी एम्पलीफाई कर दिया। देन ट्रांसमिशन मीडियम लगा हुआ है, ट्रांसमिशन मीडियम या वायरलेस भी हो सकता है तो नॉइज उसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगी। देन यहाँ पे बैंड पास फिल्टर और एम्पलीफायर लगा हुआ है। ये अगेन बैंड पास फिल्टर एक पर्टिकुलर बैंड को अलाउ करेगा जाने में और बाकी को स्टॉप कर देगा, और एम्पलीफायर जो सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। अब यहाँ पे उसने बैंड पास फिल्टर ने एक पर्टिकुलर बैंड को जो पास किया था और यहाँ पे कैरियर एंड क्लॉक रिकवरी सिग्नल लगा दिया। यहाँ पे क्यों कैरियर एंड क्लॉक रिकवरी सिग्नल लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लॉक को ऐड किया था तो यहाँ पे क्लॉक को सेपरेट करना है। तो यहाँ क्लॉक सेपरेट होगी और कैरियर सिग्नल जो है वो हमारा डीमॉड्यूलेटर एंड डिकोडर लगा हुआ है। तो ये भी क्या करेगा, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल होगा उसको आगे भेज देगा और कैरियर सिग्नल को अलग कर लेगा। तो इसने कैरियर को भी रिकवर कर लिया और क्लॉक को भी रिकवर कर लिया। कैरियर सिग्नल को अलग कर दिया, क्लॉक को अलग कर दिया ताकि हमारा ओरिजिनल जो डाटा है वो आगे चले जाए। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम। अब हम कुछ बिट्स की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन कैपेसिटी की बात करेंगे, बिट्स की बात करेंगे, बिट रेट की बात करेंगे, बॉड की बात करेंगे। इंफॉर्मेशन कैपेसिटी क्या है, एक चैनल कितना डाटा लेके जा सकता है उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन कैपेसिटी। एक चैनल के ऊपर हम कितना डाटा सेंड कर सकते हैं ये उस चैनल की कैपेसिटी होगी, या कितनी इंफॉर्मेशन वहाँ पे उस चैनल के थ्रू जा रही है वो उसकी इंफॉर्मेशन कैपेसिटी होगी। That is, it represents the number of independent symbol that can be carried through a system. कितने नंबर ऑफ सिंबल्स एक कैरियर सिग्नल के ऊपर जा सकते हैं या एक चैनल के ऊपर जा सकते हैं, वो हमारा इंफॉर्मेशन कैपेसिटी हो जाता है। अब ध्यान दो, यहाँ हम सिंबल्स की बात कर रहे हैं। सिंबल्स मतलब लेवल्स, मतलब क्या हुआ उसका, ये देखो ये हमारी बिट्स थी और ये हमारा सिंबल है। ये लेवल्स हो गए कि 0 पे वो लो लेवल है और 1 पे हाई लेवल है, तो ये लेवल डिफाइन कर दिया है। तो कितने लेवल या कितना सिंबल हमारे चैनल के थ्रू जा रहे हैं
या एक चैनल लेके जा सकता है, उसको हम बोल देते हैं इंफॉर्मेशन कैपेसिटी। अब बेसिक डिजिटल सिंबल क्या होता है? हम डिजिटल सिंबल बोले अगर तो वो क्या है, बाइनरी डिजिट है या बिट है? तो इंफॉर्मेशन कैपेसिटी हमेशा बिट रेट में होती है। अब हम बात करते हैं अपने इंटरनेट की। आप इंटरनेट में देखते हो, इंटरनेट में जो आपकी स्पीड आ रही है वो केबी पर सेकंड में आ रही है, किलोबाइट्स पर सेकंड में या एमबी पर सेकंड में। वो क्या है कि आपका जो इंटरनेट चैनल है वो कितनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहा है एक सेकंड के अंदर, वो उसकी इंफॉर्मेशन कैपेसिटी है। तो वो हमेशा बिट रेट में शो करता है कि कितनी बिट्स जा रही हैं एक सेकंड के अंदर, वो हमारा केबी पर सेकंड है या एमबी पर सेकंड है। मतलब जो इंफॉर्मेशन कैपेसिटी है वो किस में शो हो रही है? बिट रेट में। उसके बाद एक लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं हार्टले लॉ। हार्टले लॉ क्या करता है? वो बोल रहा है कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी इंटू टी। आई क्या है? इंफॉर्मेशन कैपेसिटी, जो हमेशा बिट रेट में होएगी, यानी बिट पर सेकंड में होएगी कि एक सेकंड में कितने बिट्स गए, उसी को हम बिट रेट बोलते हैं और उसी को हम बेसिकली इंफॉर्मेशन कैपेसिटी बोलते हैं। तो इंफॉर्मेशन कैपेसिटी कितनी है, वो क्या मतलब है उसका? इंफॉर्मेशन कैपेसिटी में क्या क्या चीज़ें आ गई? एक तो बैंडविड्थ आ गई, यानी कि उस चैनल की बैंडविड्थ कितनी है, कितनी उसकी कैपेसिटी है। और एक आ गया टी, टाइम, ट्रांसमिशन टाइम। कि एक इंफॉर्मेशन कैपेसिटी का मतलब क्या है कि कितने बिट्स को एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ चैनल के थ्रू जाने में कितना टाइम लगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे लीनियर रिलेशन है इंफॉर्मेशन कैपेसिटी का, बैंडविड्थ का और टाइम का। दैट मीन्स जितनी हमारा इंफॉर्मेशन जाएगा, जितनी उतनी बैंडविड्थ लगेगी। जितना नेचुरल नंबर ऑफ बिट्स जितनी ज़्यादा है उतनी बैंडविड्थ भी ज़्यादा होएगी और उतना टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या लीनियर रिलेशनशिप है। उसके बाद जो शैनन्स फार्मूला है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक आपको कंसेप्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता लगना चाहिए कि डिजिटल मॉड्यूलेशन है क्या और हम क्यों कर रहे हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन, और इसमें कैरियर सिग्नल जो है वो एनालॉग है या डिजिटल है, और जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है वो एनालॉग है या डिजिटल है। देन हमारी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स कौन कौन सी है, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। देन जो मेन बेसिक ब्लॉक डायग्राम था डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम का, कि मॉड्यूलेशन सिस्टम में किस तरह से काम हो रहा है। और फिर बेसिक ये बिट रेट, इंफॉर्मेशन कैपेसिटी क्या है, और हार्टलेस इंफॉर्मेशन कैपेसिटी का जो लॉ है दैट इज़ हार्टलेस लॉ, जो मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो हम शैनन्स थ्योरम करेंगे, शैनन फार्मूला भी उसको बोलते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर है। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर देना, या फिर हम अपने ऑनलाइन लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।